Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today in my video, I am covering the next topic of your chapter 4, the electoral politics. Today's my topic is nomination of candidates. As you all know, in our previous videos, we covered the topics, that is what makes the election democratic, why we need election, and also about the election process. Under the election process, we have already discussed what is constituencies, what are reserved constituencies, and voter list. Now today's topic is nomination of candidates. This is the third steps in the election process of our country. Under this step, the political leaders fill the nomination form that is issued by the election commission of our country. एग्जैक्टली व्हाट इज़ द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. एग्जैक्टली बच्चे क्या होता है कि स्टूडेंट लीडर्स दोज वांट टू बी टेक पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शन प्रोसेस. दे वांट टू बी स्टैंड on from a particular constituency to serve the country. They have to be fill this nomination form. उनको nomination form fill करना पड़ता है with all the formalities that required by the election commission, जो कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए होती हैं. ठीक है. नाउ लेट अस रीड कि हु कैन फिल दिस नॉमिनेशन कैंडिडेट्स एंड व्हाट द फॉर्मेलिटीज दे हैव टू बी डू. Start reading. We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restriction on the anyone to contest an election. What we learn in democratic election, that there should be a real choice. Election should be free and fair, and equality should be here. तो equality कब आएगी? When there is no restrictions. Anyone can stand and anyone can have the right to contest an election. And this is what our system provide. And ये चीज़ क्या है? Our system is provided this system that anybody can contest an election if he or she want to be stand in an election. Okay. Anyone who can a voter can also become a candidate in election. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years. Difference कहाँ पर है? We can cast the vote after the age of 18 years. But if we want to stand in election, then as a candidate, then our minimum age should be 25 years. ये major difference है. There is no any other difference. There are some other restriction on criminals etc. हाँ, कुछ restrictions हैं कि किस तरह के लोग जो हैं वो कैंडिडेटशिप के लिए नहीं खड़े हो सकते और दे डोंट हैव द राइट टू बी फिल द नॉमिनेशन फॉर्म. उसमें कौन कौन है? वन इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. और ये भी एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई होता है. क्रिमिनल्स डोंट हैव द राइट टू बी फिल द नॉमिनेशन form. Okay. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Parties nomination is often called party ticket. Political parties क्या करती हैं? They give the nominate their candidates. वो अपने candidates को nominate करती हैं. Also give them their symbol. वो उन्हें अपना symbol provide करवाती हैं. और support and parties nomination is often called party ticket. नॉमिनेशन जो भी कैंडिडेट फिल करता है और नॉमिनेशन के बाद अगर वो क्वालिफाई हो जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन और पार्टी उसको रिकॉग्नाइज कर देती है, देन इट इज़ कॉल्ड अ टिकट. इसका मतलब क्या होता है कि पार्टी ने उस पर्सन को टिकट दे दिया. नॉर्मली हम इसको टिकट के नाम से जानते हैं कि वो अलाउड हो गया और अब वो पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से खड़ा हो सकता है, स्टैंड हो सकता है और उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है. अब इस नॉमिनेशन प्रोसेस में एक चीज़ जो मेनली आपको ध्यान में रखनी है कि टिकट किस पर्सन को दिया जाता है. पार्टी हर किसी पर्सन को अपना टिकट प्रोवाइड नहीं करवा सकती. इसके लिए भी प्रोसेस क्या होता है बेटा कि जस्ट अ मिनट. सो
तो हर पार्टी उसको टिकट नहीं दे सकती। पार्टी किस कैंडिडेट को टिकट देती है? पार्टी उस कैंडिडेट को टिकट देती है जो कि पार्टी को जो नॉमिनेशन की जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है, एंड दैट नॉमिनेशन इज़ एक्सेप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जिसका नॉमिनेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट करके वेरीफाई करके आ जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करती है, नॉमिनेशन वाले को टिकट देती है। ठीक है, चलिए लेट अस रीड इट। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। एक पर्सन जो इलेक्शन जीतना चाहता है, लड़ना चाहता है, उसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। और इस नॉमिनेशन फॉर्म के लिए उसको कुछ मनी देनी पड़ती है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। वो मनी किसको सबमिट करवाता है? इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, रिसेंटली एक न्यू सिस्टम डिक्लेयर किया गया, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ए डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब कौन से पर्सन जो हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म में क्या क्या जो मेजर थिंग्स जो हैं वो डिस्क्लोज करेंगे, या ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं एक कैंडिडेट को फिल करनी कंपल्सरी हैं इन द नॉमिनेशन फॉर्म। ओके, तो a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration. उसको क्या क्या चीज़ें लीगली डिक्लेयर करनी है, गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। क्या डिक्लेयर करना है? सीरियस केसेस, जो भी अगर किसी भी कैंडिडेट पर कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो वो उसे बताना ही पड़ेगा कि कौन सा केस कैसे, मतलब उस केस को उसे उस नॉमिनेशन फॉर्म में शो करना पड़ेगा, मींस फिल करना पड़ेगा। ओके, डिटेल्स ऑफ द असेस्ड एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली ऑल्सो। कैंडिडेट को अपनी फैमिली की पूरी डिटेल, लायबिलिटीज जो उसके पास है, असेस्ड एवरीथिंग। ठीक है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू बी फिल इन टू द नॉमिनेशन फॉर्म। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और इस इंफॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो पब्लिक करता है, सो दैट एवरी पर्सन शुड नो अबाउट देयर कैंडिडेट, ताकि हर पर्सन जो वोट डालने जा रहा है उसको अपने कैंडिडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा है, किस टाइप का पर्सन है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ऑल दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर वोटर्स जो हैं वो अपने कैंडिडेट को वोट डालने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, आइदर दे हैव टू बी कास्ट द वोट टू देम और नॉट। ओके, अब आपकी बुक में एक ये दिया हुआ है मैटर ऑफ डिस्कशन, दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। बच्चे, अब यहाँ पर मैं एक डिबेट की तरह है ये वैसे, बट मैं अभी आपको यहाँ पर सिर्फ एक डिस्कस ही करूँगी। मैक्सिमम टाइम यू सी that when the leaders are there, we are not observing कि which qualification that person have, और नॉर्मली किसी भी पर्सन के लीडर बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है, कि वो एटलीस्ट ये नहीं है कि उसने इतनी एजुकेशन ली हो तभी वो लीडर बन सकता है। नो, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन में कोई टर्म नहीं है। अगर आप क्लास 8th में आपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर, इन सब की क्वालिफिकेशंस को रीड किया है, बट हेयर द क्वालिफिकेशन की ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज हर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट, ऑल दीज थिंग्स, बट क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन नहीं करती, मैटर ही नहीं करती है कि वो कितना क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर ये मैटर है कि हम क्यों नहीं मैटर करते क्वालिफिकेशन को इन द नॉमिनेशन फॉर्म, और वी कैन से कि एक पर्सन को जब हम लीडर बना रहे हैं कंट्री का, तो उसकी क्वालिफिकेशन तो मच बेटर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके
ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, why there is no educational qualification for holding such an important position when some kinds of educational qualification is needed for any other job in the country. देखो वो कहता है जब हम इतनी important position किसी person को दे रहे हैं but पोजीशन के बाद भी हमने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रखी है, जबकि हर किसी जॉब के लिए भी, एक क्लर्क की जॉब के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है कि उसने +2 की हो या BA की हो, वट एवर इट इज़. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब. द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री but the ability to play cricket well. Yes, it is right. अगर हमें इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कितनी एजुकेशन है, ज़रूरी क्या है कि हम कितना अच्छा क्रिकेट प्ले करते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर हम रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन MLA और MP इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न, और यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि यहाँ क्वालिफिकेशन में रेलिवेंट क्या है. रेलिवेंट क्वालिफिकेशन क्या है कि कोई भी MLA और MP वो तभी उस पोजीशन को होल्ड कर वो तभी उस पोजीशन को होल्ड कर सकता है जब उसमें एबिलिटी हो लोगों के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने की और उनको सॉर्ट आउट करने की. अगर वो क्वालिफिकेशन के बावजूद भी उसमें ये एबिलिटी नहीं है तो ही और शी मे नॉट बी द MLA और MP ऑफ दैट place. ठीक है. whether they can do or so or not is examined by the lakhs of examiners. और वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं ये एग्जामिन कहते हैं लाखों लोग. हम अपना लीडर 5 साल बाद चेंज करते हैं या चूज़ करते हैं, उसी को दोबारा भी चूज़ कर लेते हैं कई बार. वो क्यों चूज़ करते हैं दोबारा? क्योंकि हमने उसकी एबिलिटी को चेक किया कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. ठीक है. इवन इफ एजुकेशन वॉज रेलिवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिक्लेयर हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. इवन इफ एजुकेशन वॉज रेलिवेंट, वो कहते हैं हाँ एजुकेशन रेलिवेंट है, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशन. और ये लोगों के ऊपर डिसाइड होना चाहिए कि क्या हमारा लीडर क्वालिफाइड हो या नहीं हो. इट शुड बी जस्ट डिपेंड ऑन पीपल्स, लोगों, कंट्री के लोगों के ऊपर छोड़ दो कि हमें कैसा लीडर चाहिए. पढ़ा लिखा चाहिए, समझदार चाहिए, या अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है बट वो समझदार है तो हम उसे अपना लीडर चूज़ करने के लिए तैयार हैं. इज इट? यस. ओके. So in our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy. For yet another reason, it would be meaning depriving a majority of country's citizen the right to contest election. ये भी एक कारण है. ठीक है. वो कहता है अगर हम एजुकेशन को रखेंगे तो हम डेमोक्रेसी को थोड़ा ध्यान में नहीं रख पा रहे, हम अगेंस्ट जा रहे हैं. क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर लोग किसी को पसंद करते हैं तो वो लीडर बन सकता है. ठीक है. तो वो लीडर बन सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. और दूसरी बात, अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे, बट दे हैव द एबिलिटी टू सर्व द कंट्री. ठीक है. सो लेट अस सी कि हम BA, BCom, BSc को कंपल्सरी करें या ना करें. ये अनदर एक डिबेट का इशू रहेगा. ठीक है. चलिए. सो दिस इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट. अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो क्या समझाया है कि अगर एक कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए नॉमिनेशन ज़रूरी है. दूसरी बात, अगर नॉमिनेशन ज़रूरी है तो नॉमिनेशन में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उसे ये 3 इन्फॉर्मेशंस देनी ज़रूरी हैं. ठीक है. एक नॉमिनेशन 3 इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन वो देता है दैट इज़ हेल्प द वोटर्स टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट्स. ठीक है. सो दिस इज़ द इलेक्शन नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ द कंट्री. ओके. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. हियर वी हैव सम
स्पेसिमेन ऑफ नॉमिनेशन की स्पेसिमेन है ये इलेक्टोरल रोल मिजोरम का, ठीक है। चलिए लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, दैट इज इलेक्शन कैंपेन। नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, इलेक्शन, कैंडिडेट खड़े हो गए, पार्टी का टिकट मिल गया। अच्छा, नॉमिनेशन प्रोसेस में एक चीज़ जो और मैं आपको बताना चाहती थी वो क्या था, नॉमिनेशन प्रोसेस में एक चीज़ वो जो क्या था बेटे कि नॉमिनेशन फॉर्म की एक पर्टिकुलर डेट होती है, ठीक है, और उसी डेट के अंदर उसे नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है कैंडिडेट को। इट इज़ नॉट रिटन इन हेयर बट फॉर योर जनरल नॉलेज मैं बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर डेट तक कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट अगर वो इलेक्शन में अपना मन चेंज कर बैठा कि मुझे नहीं कंटेस्ट करना, तो वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस भी ले सकता है, ठीक है, विड्रॉ भी कर सकता है वो, ठीक है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो सारे के सारे नॉमिनेशन कैंडिडेट्स को चेकआउट करता है, उनकी सारी की सारी वेरीफाई करता है और फिर उसके बाद उनको येस करता है, ओके करता है, और नॉमिनेशन फॉर्म ओके होने के बाद पार्टी उन्हें टिकट देती है, ठीक है। सो दिस इज द नॉमिनेशन प्रोसेस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन, यू ऑल नो अबाउट दिस। बस जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम नहीं पता, बाकी आप सबको पता है कि कैंपेनिंग होती है और कैंपेनिंग किस तरह से होती है। यू ऑल नो इलेक्शन कैंपेन क्या है। कैंपेन जैसे जब इलेक्शन होने होते हैं, इलेक्शन से पहले हर पार्टी लीडर जो है वो अपने लोगों के बीच में जाता है, रैलीज करता है, पैम्फलेट्स दिखाता है, मैनिफेस्टो निकालती है पार्टीज़, ठीक है। तो पार्टीज़ क्या कर रही हैं, पार्टीज़ अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैंपेनिंग। इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है कैंपेनिंग, जिसमें पार्टी जो है, पार्टी मेंबर्स जो हैं लोगों के बीच में जाकर रैलीज निकालते हैं, अपना भाषण देते हैं, अपने मैनिफेस्टो के बताते हैं, पार्टी में क्या क्या थॉट्स हैं, पार्टी क्या क्या करना चाह रही है, वट एवर द पार्टीज एम, ऑब्जेक्टिव्स, ऑल दैट थिंग्स आर एक्सप्लेन टू द पीपल। लोगों को एक्सप्लेन किए जाते हैं थ्रू द कैंपेनिंग, थ्रू द कैंपेनिंग। तो इसे हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। अब हर पार्टी बिफोर इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब कैंपेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, और यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस भी दिए हुए हैं आपको, किस पार्टी ने कैंपेनिंग के लिए क्या क्या स्लोगन्स लिए, वट एवर इट इज़। बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस विल आई डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।